जजों की नियुक्ति पर नियुक्ति आयोग को संवैधानिक जो चुनौती दी गई थी उस पर फैसला आ गया है। एनजेसी को असंवैधानिक करार दिया गया, एनजेसी को संवैधानिक करार दिया गया और यह महत्वपूर्ण है कि इस मामले को लेकर in favor of taking this in a historic judgment today by the Constitution Bench of Supreme Court of India, led by Honorable Justice J.S. Keha, the Honorable Supreme Court has declared 99th Amendment of the Constitution seeking appointment of Judicial Commission as unconstitutional. The ground for unconstitutionality is that it violates the basic structure of the Constitution. As per the basic structure of the Constitution, independence of judiciary is a part of the basic structure, and it interferes with the independence of judiciary, and thus the basic structure cannot be allowed to be tampered with. So on that ground, the Constitution Bench has declared the amendment unconstitutional. The old system of collegium system, where the senior most judges will choose the judges, will continue. That has been restored. So what has been the how many judges were for it, or was it unanimous? It was the majority. Sir, your name and Number they were still reading when we came. Okay. so Yes. your name. Dr. Suraj Singh, Advocate, Supreme Court. Okay. Yes, sir. yes. Sir, हिंदी में भी बता दीजिए. आज एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की ने, जिसमें जस्टिस केहर की कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो नई जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का अमेंडमेंट था, 99th अमेंडमेंट, ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, और जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्योंकि इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के अलावा, जजेस के अलावा एमिनेंट जूरिस्ट के नाम से दूसरे लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डर होगा। 6 बेंच में से 2 जो कहेंगे वो वीटो कर सकते हैं, और वो 2 नॉन जुडिशियल हैं, तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मान्य नहीं है, इसलिए ये संशोधन जो है असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाता है। सर, पहला पॉइंट जो कोर्ट ने कहा था 3 पॉइंट के जजमेंट के पहला पॉइंट क्या था उसमें, लार्जर बेंच वाला? That it was referred to the larger bench. It can still be referred to the larger bench, क्योंकि ये 5 जजेस का है ये, और फुल बेंच जो है अभी तक सबसे ज़्यादा बड़ा फैसला केशवनाथ भारती के केस में था। उस समय 13 जजेस थे, तो 13 के 13 जजेस उसमें बैठे थे। तो अगर चाहे गवर्नमेंट तो इसको लार्जर बेंच को रेफर कर सकता है। Initially wanted a 9-judge bench. That's right. Yeah. लेकिन since Honorable Justice Dattu declined to participate, Yeah. and Justice Thakur being the senior most judge and the next Chief Justice of India, so then they thought that all those who will not be involved in this should be taken up. There was also an observation around the recusal of judges, around being Exactly. ex officio members. Exactly. Like Chief Justice of India of the new proposed commission was supposed to be the member, and 2 other senior most judges. Right. So because of that, because 3 senior most judges, including Chief Justice, would be member of that commission. So generally in law we say that you cannot be judge in your own case. So since they people would be appointed, so it was not considered proper that they should hear the case. So they recluse themselves. So then the bench headed by Justice Keher was constituted, and today they have declared 19th Amendment to the Constitution regarding appointment of Judicial Appointments Commission as unconstitutional. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. It's a triumph of independence of judiciary. We, on behalf of Bar Association of Supreme Court of India, are happy that the independence of judiciary, which was attained after long effort from 1996, now has been restored. तो अब क्या कॉलेजियम सिस्टम से ही अगली नियुक्तियां होंगी? नहीं, अब कॉलेज सिस्टम से ही सेम सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स अब तक बीच में हो चुकी, तो वो जो है लीगल मानी जाएंगी, क्योंकि कोई भी लॉ अगर डिक्लेयर होता है तो जिस डेट से वो इलीगल डिक्लेयर होता है उससे पहले की जो भी कार्रवाई होती है वो ठीक मानी जाती है। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू।
तो एक बहुत बड़ा फैसला और मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि मोदी सरकार चाहती थी कि इस तरीके से ये एक आयोग बने, इसे संवैधानिक करार दिया गया है। न्यायमूर्ति JS केयर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला लिया है, और ये इसलिए इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं थे क्योंकि प्रशांत भूषण का इस पर क्या कहना, जरा सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत अहम फैसले में संवैधानिक संशोधन कानून जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन करने के लिए बनाया गया था, उसको रद्द कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक करार दिया है और बोला है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा, और बोला है कि अभी वो जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें कि जजों की ही, सीनियर जजों की ही कमेटी जजों की नियुक्ति या चयन करती है, वही अभी चलेगी। उन्होंने ये जो कोलिजियम सिस्टम के पारदर्शिता के बारे में कुछ बोला है कि नहीं बोला, ये अभी पता नहीं है। ये सब डिटेल्ड जजमेंट पढ़ने से पता लगेगा। लेकिन ये जो सरकार जो ये कानून लाई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का कानून, जिसमें कि अपॉइंटमेंट्स कमीशन में 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज और 1 कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन्स जिनका चयन सरकार और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर करते थे, सरकार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस मिलकर करते थे, इस अपॉइंटमेंट्स कमीशन को रद्द कर दिया है। और तो जाहिर है मोदी सरकार के लिए इसलिए बड़ा झटका क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये पहल किया गया था, और कोलिजियम के जरिए जो होता था इससे पहले अपॉइंटमेंट, उसके काउंटर में कहीं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, और उसके जरिए इस दौर में जो अपॉइंटमेंट हुई है उस पर कोई उंगली उठाई गई है, उस पर कहा गया वो बरकरार रहेगी, लेकिन कोलिजियम के जरिए ही होगा। क्योंकि जो बहस हुई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि नरीमन साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि जब 3 जजेस रहेंगे और 1 कानून मंत्री भी उसमें शामिल हो जाएगा और सरकार के लोग ही तय करेंगे कि 2 एमिनेंट पर्सन क्या होंगे, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आने वाले वक्त में इससे असर पड़ेगा। राम जेठमलानी ने कहीं ज्यादा तीखे तेवर अपनाए थे और उनका कमेंट था कि दरअसल भ्रष्ट न्यायपालिका सरकार चाहेगी जिससे भ्रष्ट जजों तक की नियुक्ति हो जाए। यह शब्द का इस्तेमाल जेठमलानी के जरिए तर्कों में किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और गैर संवैधानिक करार दिया कि जो नियुक्ति आयोग बनाने की जो सोची जा रही थी वो बिल्कुल गलत है, और वो न्यायपालिका की पारदर्शिता, न्यायपालिका के अपनी स्वतंत्रता के भी ये खिलाफ है। तो ये सरकार के लिए बड़ा झटका है।